Hello बच्चों, today we have to study management concept and organization behavior. The topic is group and an organization. Our group is a collection of two or more peoples who have a common goal or interest and interact with each other to accomplish their objectives, are aware of one another and perceives themselves to be a part of a group. Group collection of two and more peoples, दो या दो से अधिक लोगों का संग्रह को एक समूह कहते हैं who have common goals or interact with each other जिनके पास एक लक्ष्य होता है they have the common goals and interest and interact एक दूसरे से बातचीत करते हैं with each to accomplish their objectives अपने उद्देश्य पूरा करने के लिए are aware of another and perceives themselves to be a part of an organization एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं जागरूक होते हैं एंड और themselves to be a part of group और समूह का हिस्सा होते हैं इसी को एक ग्रुप कहते हैं दो या दो से अधिक लोगों के समूह को संग्रह को साथ रहने को ग्रुप कहते हैं वो साथ आते हैं अपने उद्देश्य के लिए अपने गोल को अचीव करने के लिए इंटरेक्ट करने के लिए अपने उद्देश्य को जागरूक करने के लिए एक दूसरे के बारे में जागरूक होने के लिए और एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए इसी को भी अ पार्ट ऑफ ग्रुप कहते हैं अकॉर्डिंग टू स्टीफन एंड रॉबिन्स A group can be defined as two or more people. एक समूह को दो या दो से अधिक लोगों के रूप में परिभाषित किया जाता है interacting interdependently and who come together to achieve particular goal. वो बातचीत करते हैं और विशेष लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साथ आते हैं That's called a group. The second topic is type of group. समूह के प्रकार formal group. Formal group is a part of an organization structure. It is created by the management or perform the assigned duties. The formal group are called also known as official organization. The example of formal group are work groups, committees and quality teams. Formal is a part of organization structure. Formal group organization structure का एक हिस्सा है. It create by a management to perform assigned duties. ये assign करते हैं कर्तव्यों को करने के लिए. It create the management of perform the assigned duties. फॉर्मल ग्रुप को मैनेजमेंट में क्रिएट किया गया है परफॉर्म द असाइन ड्यूटी कर्तव्यों को अपनी ड्यूटी को करने के लिए द फॉर्मल ग्रुप आर ऑल्सो नोन एज ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉर्मल ग्रुप को ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है द एग्जाम्पल ऑफ द फॉर्मल ग्रुप आर वर्क ग्रुप कार्य समूह कमिटी समिति एंड क्वालिटी टीम्स गुणवत्ता टीम्स द सेकेंड इज informal group is a create an organization because of the operation of social and physiological forces operating at workplace and informal group assign voluntary and they satisfy the social needs of the member of the group informal group is based on common interact languages caste religion backgrounds etc informal group informal group is a create an organization ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल ग्रुप का बनना बिकॉज क्योंकि ऑफ द ऑपरेशन ऑफ सोशल एंड फिजियोलॉजिकल फोर्सेस इनफॉर्मल ग्रुप को
ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट करना, क्योंकि सोशली एंड सामाजिक और मनोवैज्ञानिक बल के लिए वर्क प्लेस पे सोशल एंड फिजियोलॉजिकल सामाजिक और मनोवैज्ञानिक बलों का होना इम्पोर्टेंट है। एन इनफॉर्मल ग्रुप असाइन वॉलंटरी एंड दे सेटिस्फाई द सोशल नीड्स ऑफ द मेंबर ऑफ द ग्रुप मेंबर ऑफ द ग्रुप वे सामाजिक समूह के सदस्य की जरूरतों को पूरा करते हैं। इनफॉर्मल ग्रुप इज बेस्ड ऑन अ कॉमन इंटरेस्ट लैंग्वेज कास्ट रिलीजन बैकग्राउंड एक्सेट्रा। इनफॉर्मल ग्रुप इज बेस्ड है कॉमन इंटरेस्ट लैंग्वेजेस कास्ट रिलीजियस एंड बैकग्राउंड पे। ये सामान्य हित पर आधारित है, भाषा जाति धर्म और पृष्ठभूमि। इनफॉर्मल ग्रुप का होना ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक बलों के संचालन के लिए ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक इज membership group a group to which a person either belong or would have quality for membership is called membership group. For example, the group of women whom a younger actress plays cricket weekly would be considered for her a membership group. Membership group सदस्यता समूह a group of which a person either belong एक समूह जिसे एक व्यक्ति और would have quality for the member is called membership group. एक व्यक्ति जिसमें एक व्यक्ति और औरों से संबंधित है ग्रेट क्वालिटी ऑफ मेंबरशिप और उसके पास ग्रेट क्वालिटीज है मेंबरशिप के लिए, इसे ही मेंबरशिप ग्रुप कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल द ग्रुप ऑफ वुमेन हु उदाहरण के लिए द ग्रुप ऑफ वुमेन whom a young actress play एक महिलाओं का समूह एक यंगर एक्ट्रेस क्रिकेट खेलती है एक यंगर एक्ट्रेस क्रिकेट खेलती है वीकली would be considered for her membership group सदस्य समूह के लिए consider would have been साप्ताहिक weekly would be considered for her membership group उनकी सदस्यता समूह के लिए विचार किया जाएगा। मेंबरशिप ग्रुप बहुत सी वुमेन्स एक यंगर एक्ट्रेस के साथ क्रिकेट खेलती है सो दैट्स बी कंसीडर फॉर हर अ मेंबरशिप ऑफ ग्रुप उनके लिए कंसीडर किया जाएगा फॉर हर मेंबरशिप ग्रुप। द नेक्स्ट टॉपिक इज symbolic group a group in which an individual is not like to receiving membership despite acting like a member by adopting the group's values attitude behaviors is considered a symbolic group. For example, professional cricketers may consider a symbolic group of India. Symbolic group प्रतीकात्मक समूह a group which individuals is like a group in which an individual is not like to receive membership एक समूह जिसमें एक व्यक्ति की संभावना नहीं होती रिसीविंग मेंबरशिप डिस्पिट एक्टिंग सदस्य प्राप्त करने के बावजूद एक्टिंग लाइक अ मेंबर बाय अडॉप्टिंग द ग्रुप वैल्यूज एटीट्यूड बिहेवियर इज कंसिडर्ड अ सिंबॉलिक ग्रुप समूह के मूल्य दृष्टिकोण और व्यवहार को एक प्रतीकात्मक समूह माना जाता है। फॉर द एग्जाम्पल प्रोफेशनल क्रिकेट में constitute a symbolic group for India. एक प्रोफेशनल क्रिकेटर एक प्रतीकात्मक समूह
का गठन कर सकते हैं भारत में। द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेंडशिप ग्रुप। Friendship group is a typical classical classified as informal group because it is usually unstructured and lack a specific authorized label. Friendship group Friendship group is a typical classical classified as informal group. ये classified है informal group because it is a usual unstructured. यह आमतौर पर unstructured है और lack specific authorized label. विशेष प्राधिकरण के स्तर की कमी है। फ्रेंडशिप ग्रुप एक विशिष्ट ग्रुप है। ये वर्गीकृत है, आमतौर पर अनस्ट्रक्चर्ड है और स्पेसिफिक लैक स्पेसिफिक अथॉरिटी लेवल्स। विशिष्ट प्राधिकरण के स्तर की कमी है। दैट्स कॉल इज फ्रेंडशिप ग्रुप। एग्जाम के तौर पे आपके ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेजेस ऑफ ग्रुप forming. This is the first stage in group development process. Forming is characterized by a great deal of uncertainty and ambiguity about the group motive, structure, leadership pattern, etc. They don't know what type of behavior is acceptable in the group. The group member gradually begin to think of themselves as a part of a group. Forming. ये प्रोसेस दिस इज द फर्स्ट स्टेज इज ग्रुप डेवलपमेंट। ग्रुप डेवलपमेंट की ये फर्स्ट स्टेज है। फॉर्मिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय द great deal of uncertainty and ambiguity about the group motivate structure leadership pattern. गठन के बारे में अनिश्चितता और अस्पष्टता के एक ग्रेट डील के लिए विशेषता है। समूह का उद्देश्य, संरचना, नेतृत्व और पैटर्न आदि पे डिपेंड करता है। दे डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर। वे नहीं जानते समूह में किस तरह का व्यवहार स्वीकार्य है। द ग्रुप मेंबर ग्रेजुअली बिगिन टू थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप। द ग्रुप मेंबर ग्रेजुअली बिगिन टू थिंक समूह के सदस्य धीरे धीरे टू बिगिन टू थिंक सोचते हैं देमसेल्व्स एज अ पार्ट ऑफ ग्रुप, खुद के बारे में सोचना शुरू करते हैं। सो फॉर्मिंग ग्रुप डेवलपमेंट की पहली स्टेज है जिसमें दर्शाया गया है निश्चितता किस तरह से गठन किया जाता है, अनिश्चितता, अस्पष्टता और किस तरह से ग्रेट डील को अनसर्टेनिटी किया जाता है। ग्रुप मोटिवेटेड समूह का उद्देश्य क्या है, स्ट्रक्चर, लीडरशिप एंड पैटर्न क्या है। दे डोंट नो कि बिहेव कैसे करते हैं। दैट्स द डिफाइन एंड फॉर्मिंग। द नेक्स्ट टॉपिक इज storming. Storming is the second stage in group development. In this intergroup conflict is characterized. Members started accepting the existence of the group, but they try to resist it to the limitations of restrictions imposed by the group of their individuality. Storming. Storming is the second stage of group development. यह ग्रुप डेवलपमेंट का दूसरा चरण है। इन दिस इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट इज कैरेक्टराइज्ड। इसमें इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट की विशेषताएं हैं। मेंबर्स स्टार्टेड एक्सेप्टिंग देयर एक्सेंस ऑफ द ग्रुप। वे सदस्य अस्तित्व को स्वीकार करना शुरू करते हैं। ट्राई टू रेसिस्ट द लिमिटेशंस सीमाओं। वे निर्धारित सीमाओं या प्रतिबंधों का विरोध करने की कोशिश
करते हैं by the group of their individual by the group of individual ऑर्गेनाइजेशन में समूह द्वारा उनके व्यक्तित्व पर वे निर्धारित करते हैं सीमाओं और प्रतिबंधों के विरोध की सो स्टॉर्मिंग ये दिस इज द सेकेंड स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट एंड स्टिल इन दिस बहु संघर्ष की विशेषता डिफाइन करते हैं अस्तित्व को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं दे ट्राई टू रेजिस्टेंस वे लिमिटेशन सीमाओं और प्रतिबंधों के विरोध को करने की कोशिश करते हैं द नेक्स्ट इज नॉर्मिंग द थर्ड स्टेज ऑफ is one in which interacting relationship development and there are signs of group cohesiveness. A strong group identity develops, the group structure takes a shape and the group assimilate a common set of goals and expectations of member behavior. Norming. The third stage of which ये तीसरा stage है in which interact relationship developed and there are signs a group cohesive. इसमें जटिल संबंध विकसित होते हैं और समूह संकलन दे आर साइन ऑफ ग्रुप कोहेंसिव्स इसमें ग्रुप कोहेंसिवनेस के संकेत हैं अ स्ट्रॉन्ग ग्रुप आइडेंटिफाई डेवलप्स एक मजबूत पहचान विकसित होती है द ग्रुप स्ट्रक्चर टेक अ शेप समूह संरचना and the group stimulate a common set of goals and expectations of member behavior. समूह संरचना एक आकृति लेती है और समूह एस्टिमेट एज अ कॉमन सेट ऑफ गोल लक्ष्यों का सेट और सदस्यता व्यवहार की members behave सेट ऑफ गोल्स लक्ष्य को निर्धारित करना और मेंबर्स बिहेवियर सदस्य का मेंबर बिहेवियर को एक्सपेक्टेशंस पे डिफाइन करता है दैट्स द कॉल इज नॉर्मिंग इज थर्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ये बताता है ये जटिल संबंध को विकसित करता है मजबूत पहचान बनाता है संरचनाओं को आकृति प्रदान करता है गोल सेट करता है दैट्स इज अ नॉर्मिंग द फोर्थ इज परफॉर्मिंग द फोर्थ स्टेज इज परफॉर्मिंग when the group is fully functional at this point group emergency energy has moved from getting to know the understand each other to performing the task here there is an outburst of activity to perform the given goal in the stipulated time periods performing represent करना the fourth stage of performing है when the group is fully functional at the point जब पूरी तरह से समूह फुल फंक्शनल एट द पॉइंट इस बिंदु पर कार्यरत होता है ग्रुप एनर्जी हैज मूव्ड फ्रॉम गेटिंग टू नो एंड अंडरस्टैंड ईच अदर परफॉर्मिंग देयर टास्क ग्रुप एनर्जी ग्रुप्स ऊर्जा को जानने के लिए प्रेरित करते हैं एंड अंडरस्टैंड ईच अदर कार्य करने के लिए एक दूसरे को समझने के लिए जरूरी है हियर दिस इज एन आउटब्रस्ट ऑफ एक्टिविटी टू परफॉर्म द गिवन गोल इन स्टिपुलेट यह एक आउटब्रस्ट देयर इज आउटब्रस्ट यह एक एक्टिविटी है टू परफॉर्म गिवन गोल इन स्टिपुलेट टाइम पीरियड जो निर्धारित समय अवधि में दिए गए लक्ष्य को करने के लिए दिए गए टाइम में करने के लिए एक्टिविटी को करने के लिए एक गोल है दैट्स अ कॉल इज परफॉर्मिंग जहां आप को एक लक्ष्य दिया जाता है और आपकी ग्रुप एनर्जी को डिफाइन किया जाता है कि आप किस तरह से इतने टाइम पीरियड में अपना जो आपको वर्क दिया गया है करोगे या नहीं दैट्स अ कॉल इज परफॉर्मिंग द नेक्स्ट इज
Adjourning. The final stage in group development is adjourning. The group is the permanent nature and adjusting is the last stage. However, the temporary work teams, task force, committees, etc. Adjourning is the last stage. Adjust, adjourning, the final stage of group development. ये group development की last stage है is adjourning. The group of the permanent nature and adjourning the last stage. समूह स्थायी प्रकृति है और ग्रुप इज द परमानेंट नेचर. यह एक प्राकृतिक नेचर है, प्राकृतिक स्थायी प्राकृतिक है. एंड एडजर्निंग इज द लास्ट स्टेज. एडजर्निंग अंतिम चरण है. हाउएवर, हालांकि द टेम्पररी वर्क टीम, अस्थायी कार्यदल, टास्क फोर्स, कार्यबल, कमेटी एक्सेट्रा आदि the last stage, they are the last stage of adjourning. So adjourning एक last stage है group development की. is a permanent, ये permanent nature है and adjourning is the last stage. जहाँ group आपका permanent nature है वहीं adjourning आपकी last अंतिम stage है. however the temporary work is the अस्थायी कार्यदल, टास्क फोर्स, कमिटीज, ये सभी adjourning के last stages हैं. This call is adjourning. The next is interpersonal skills. पारस्परिक कौशल. Interpersonal skills are the life skills we use every day to communicate and interact with each other peoples, both individual and in group. Interpersonal are the life skills. इंटरपर्सनल जीवन स्किल्स हैं, लाइफ स्किल्स हैं. वी यूज़ एवरीडे, हम इन्हें रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और इंटरेक्ट, एक दूसरे से बातचीत करते हैं विद ईच पीपल्स, बोथ इंडिविजुअल्स आर द ग्रुप, समूह और अन्य लोगों के साथ बातचीत करके. सो द नेक्स्ट इज पीपल हु हैव वर्कड ऑन डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स are usually more successful in both their professional and personal lives. People who have worked on development, जो लोग मजबूत कौशल विकास बनाने के लिए कौशल विकसित करने पर काम करते हैं, पर इंटरपर्सनल स्किल्स आर यूजुअली मोर सक्सेसफुल इन बोथ देयर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लिव्स. आमतौर पर वे प्रोफेशनल्स एंड पर्सनल व्यक्तिगत जीवन दोनों में अधिक सफल होते हैं. इंटरपर्सनल्स डिफाइन एज यू दैट पीपल हैव वर्क ऑन डेवलपिंग इज स्ट्रॉन्ग. वे अपना डेवलपिंग देयर स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स कौशल विकास विकसित करते हैं और आमतौर पर वे प्रोफेशनल और व्यक्तिगत दोनों में अधिक सफल होते हैं. That's a call is defined as interpersonal skills. The next topic is elements include in interpersonal skills. Interpersonal में शामिल तत्व. The first is verbal communication, मौखिक संचार. The second is normal verbal communication, गैर मौखिक संचार. Listening, सुनना. Negotiation, वार्ता करना. Problem solving, समस्या सुलझाना. And sixth is decision making, उचित निर्णय लेना. And seventh is assertiveness, दृढ़ता बनाए रखना. There are the some elements included in interpersonal skills. ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें.